Welcome everyone. Thanks a lot for staying with us. You're watching Plain Speak with me, Shivani Gupta, and I'm joining you for a very special edition right from Ayodhya. This is the place to be. This is the town to be. This is where the anticipation of a 500 years is now finally culminating with the Pran Pratishthan of Lord Ram Lalla in the new Bhavya Ram Mandir. We've seen the first images of the Ram Lalla idol, which has been sculpted in Shyam Varn black stone. A 5-year-old depiction of Lord Ram. The idol has finally been unveiled. It has been uncovered. We saw images which were slightly covered. We saw an image where part of the face was covered. But finally today, on this occasion, barely 3 days to go before the Pran Pratishthan, the entire idol was uncovered. And in a way, Ayodhya Nagari, Ram Nagari and the entire country and the world has done darshan of the new Ram Lalla. But the Pran Pratishthan is a very important ceremony that's going to take place on January 22. And here on CNN News 18, we'll be bringing you 100 hours of unfettered, continuous coverage from Ayodhya. First up, of course, we will get you the mood on the ground as well. I have guests joining me in just a bit. And we will get you all the sights and sounds, the color, the noises, the smells, if we could, from around the city as it builds up to January 22. खिले है अयोध्या नगरी सबसे सुंदर सीता राम की अयोध्या नगरी अयोध्या नगरी होई अयोध्या नगरी Joining me on this momentous occasion as we build up to the big ceremony on January 22, where none other than the Prime Minister is going to be the Yajman of the ceremony, are some esteemed guests. We are joining you from Ram Ki Pairi with the Saryu right behind us. We can hear the music of the river, and of course there is music of devotion in the air in Ayodhya. Right next to me is Vishnu Shankar, senior lawyer, needs no introduction when it comes to issues of faith. Vishnu, thanks a lot for joining us here. Very good evening. Neeti is also joining us. Neeti is an astrologer and of course someone who believes in Sanatan Dharma and its values. We'll talk to her about that. Ram Dharan Das is spokesperson and VP of ISKCON Kolkata, who's joining us. He's been someone who's been talking a lot about the fight that Hindus have had to fight to get to this day. And Mahant and Acharya Shailesh Tiwari, Vedic Guru, is also joining us. जय श्री राम. बहुत धन्यवाद. बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए. Vishnu, I want to begin with you. The occasion, I don't know how to overstate this occasion. There's no way to overstate this, but there is no way to truly express it in words. This is the struggle of 500 years that is finally coming to an end. Do you have words to describe this? I think there are no words to describe it, but definitely I can share my feelings with you. Yes. We are coming from a generation where we have seen our Ram Lalla being worshipped in a chabutra. We have seen our Ram Lalla being worshipped in a tent. And today that occasion is coming, where on 22nd of January we are going to see Ram Lalla in a Bhavya temple. So it's a very, very proud moment for all of us and for the entire legal team who has worked in the Supreme Court, in the High Court, in the trial court, who never saw any ray of hope. Yes. And they were always criticized that the matter is lingering in the court, nothing will happen from the court, it will be pending in the court, it will never be decided. Ultimately today the Indian judiciary has given a very strong message on 9 November 2019 by deciding this case. Let me tell you that the issue of Jerusalem, where 3 faiths, 3 Abrahamic religions are fighting, that issue has not been decided from past 2000 years, but it is the power of Indian judiciary that they have decided this case within a preferable time on 9 November 2019. And this feeling which is going to happen on 22nd of January, it's beyond words. You know, I was about to say that ideally a lot of these decisions should not have to go to the judiciary, should not have to come from the judiciary. The nation should have, the way Somnath was reconstructed after independence. There is no way that some of these other temples could not have been reconstructed. But finally, it is from the judiciary that a verdict like this can come. And the judiciary has the power, as one man told me, to diffuse all the tension,
absorb all the tension, diffuse all the tension, and give a verdict at the right time. Of course, this has been a verdict that has been waited for a very long time. And yes, there was criticism. Yes. There was criticism that actually the courts don't want to do anything, or the atmosphere is not correct. But let's talk about the atmosphere today. Let's not delve into the past too much. What do you make of the atmosphere today in Ayodhya? See, I have been meeting people from all the stratas of the society, from all the ages, and from young to old generation. Everybody is so thrilled and so joyful that it cannot be expressed in words, because people who have been in Ayodhya, they know the importance of this place. Yes. They know the importance of birthplace of Ramlala. They know the Shastrik Mahatva of birthplace of Ramlala and how important this temple was for them. They also know that generations after generations, this message has passed to them that their temple was demolished by barbaric Babar in 1528, and that historical injustice is not been able to remedy. After generations, people kept worshipping there. Yes. On the plinth, on various sites of the so-called mosque, and they believed that one day justice will happen with this entire civilization, and so it be. Today is the day, on 22nd of January, when this justice is going to be completely, Yes. we will see that it is happening on ground. रामधरन दास जी, कभी कभी ये सोच के बहुत दुख होता है कि भारत जैसे देश में जहां राम को इतना मानते हैं, इतना पूजते हैं, ये प्रूफ करना पड़ा कि ये राम जन्म स्थान है. कोर्ट में प्रूफ करना पड़ा, ये प्रूफ करना पड़ा कि यहाँ मंदिर था, जबकि हमारी तो जनरेशन आफ्टर जनरेशन एक स्पोकन हमारी एक हिस्ट्री है जो जनरेशन आफ्टर जनरेशन पास होती रहती है, किसी को प्रूफ करने की जरूरत नहीं पड़ती. तो ये जो हमारी स्ट्रगल रही है कि भारत में भी ये प्रूफ करना पड़ा कि ये राम जन्म स्थान है या यहाँ राम का मंदिर होता था, उस स्ट्रगल को आप कैसे देखते हैं? ये बहुत ही दुखदाई है कि राम के देश में उनके जन्म स्थान के लिए हिंदुओं को 496 इयर्स वेट करना पड़ा. लेकिन फाइनली भगवान आ रहे हैं, अपने रामलल्ला आ रहे हैं, 22 जनवरी आ रहे हैं. 1528 में जब बाबर ने मंदिर को तोड़ दिया था, तो ऐसे नहीं कि वो जस्ट आया और तोड़ दिया. हजारों लोगों को की उसको हत्या करनी पड़ी. हिंदुओं ने उसका विरोध करने, फाइट किया. कत्ल करने के बाद उसने जबरदस्ती मस्जिद बनाई, लेकिन इमीडिएटली हिंदुओं ने वहां पर फिर से जो भी खाली स्थान था वहां से पूजा शुरू कर दी और भगवान का वेट करते रहे. तो ये बहुत ही लंबा संघर्ष है. मैं पढ़ रहा था कि लगभग 4 लाख लोग मारे गए, हिंदुओं की हत्या की गई, उससे भी ज्यादा. 4 लाख ये बहुत ही जस्ट एक अनुमान है. कम से कम 4 लाख लोगों हिंदुओं की हत्या की गई. लेकिन सबसे ज्यादा आश्चर्य तब होता है जब भारत स्वतंत्र हुआ, उसके बावजूद भी हमको 75 से भी ज्यादा वर्ष लग गए भगवान के जन्म स्थान को प्राप्त करने के लिए. तो आज जब ये मुमकिन हो पाया है, आज जब ये रियलिटी बन गया है, तो आज आपकी फीलिंग क्या है? मैं कलकत्ता से, एक्चुअली मेरा प्लान था 20 तारीख को आने का. हाँ. लेकिन 10 जनवरी के आसपास मैं बहुत बेचैन हो गया और मैं अपना कार उठाया, ड्राइवर का भी वेट नहीं किया, कलकत्ता से ड्राइव करते हुए मैं आ रहा हूँ. कलकत्ता से आप ड्राइव करते हुए आ रहे हैं? जी, और रास्ते में आपको बताता हूँ अनुभव. रास्ते में मैंने देखा हजारों लोग, हाँ. कोई 2-2 महीने से पैदल चल रहे हैं, अयोध्या की तरफ आ रहे हैं. मैं कलकत्ता से पहले नेपाल गया, सीतामढ़ी, फिर वहां से जनकपुर में, वहां पर जितने भी तीर्थ थे वहां से जल इकट्ठा किया. वहां पर भी, नेपाल में भी, मैया सीता की जन्मभूमि में भी लोग इतने आनंदित हैं, पूरा उत्सव अभी 10 दिन से पहले से ही लोग उत्सव मना रहे हैं. और लोग भगवान के लिए प्रेजेंट लेके आ रहे हैं, अलग अलग वस्तुएं लेके आ रहे हैं. और मैं बहुत रास्ते में जब रुकते रुकते आ रहा था तो मैं लोगों को पूछता था कि आप पैदल चल रहे हैं, आप कार में चलेंगे? बोले नहीं, ये हमारी तपस्या है. तो आप रास्ते में देख सकते हैं लोगों की भावनाएं जो हैं किस तरह भगवान से. बिल्कुल बिल्कुल. और ये भावना ही है. दैट इज व्हाई आई सेड दैट in India you don't have to have something written, you don't have to have someone to prove it through archaeology or through some written historic artifacts. In India our spoken history is our itihas, and nobody doubts that itihas, but we lived in a time post independence where people doubted that itihas. They said many things. They even questioned whether Ram was even worshipped as far back as when Babar first attacked this temple. So a lot of that has flown under the Ganges, as they say. But I want to go across to Neeti Sharma also. Neeti,
Your thoughts? We are from a generation that possibly hasn't struggled as much as some of our forefathers and foremothers who have struggled for this. Your thoughts today when this is becoming a reality? You know, the strength of a civilization is in not forgetting what it stood for. And I think the Ram Janmabhoomi movement and the success of being able to build this temple is a success of that civilization that has faced so many onslaughts but has not given up. Certainly, this is the success of civilization and recognizing the civilization, the spirit of civilization of India. The one name which is echoing across India, the one name which is actually echoing across the globe, the one name which is echoing across the streets of India, the one name which is echoing in the heart of each and every single citizen of India is Jai Shri Ram. Jai Shri Ram. This is the echo. We are hearing across the globe. This is the true identity of India. The religious, the cultural positioning of India across the globe is somewhere is rising in this phase. Once Ramakrishna Paramahansa said, the winds of grace are always blowing. It is you to rise and sail. So this is the rising India and the divinity we are feeling in Ayodhya. What is the meaning of Ayodhya? जिसको युद्ध में कभी भी पराजित ना किया जाए. So this is where the long exile of Ayodhya of 500 plus years is going to end. This is where, when Rama said, when he conquered Lanka, and Lakshman said that, sir, you are leaving the golden Lanka over here. So he said, Janani Janmabhoomi Swargadapi Garyasi. So we are sitting in the Swarg of Lord Rama. This is the Swarg of Sanatan. And this is the identity of Hinduism across the globe. We are celebrating the oneness of all religion. Lord Rama's clothes have been made and stitched by a Muslim parivar over here in Ayodhya. So there is no difference of religion or cultural boundaries. We are across that because Ram is what is Sanatan. The word Sanatan itself signifies Sana means Nirantar, Tan means Vartaman. जो निरंतर वर्तमान, जो शाश्वत जिसका ना आदि ना अंत, जो ब्रह्म ब्रह्मांड, वो है सनातन और वो है राम. बिल्कुल, बहुत अच्छा बोला आपने. मेरे साथ आचार्य शैलेश तिवारी भी हैं और उनके साथ महंत नारायण गिरी जूना अखाड़ा से जुड़े हैं. अखाड़ों ने बहुत लड़ाई करी है और यहाँ पे अयोध्या वासियों को बताने की जरूरत नहीं है कि अखाड़ों ने कितनी लड़ाई करी है राम जन्मभूमि के लिए. लेकिन आचार्य तिवारी जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप क्या मानते हैं, ये जो प्रयास हुआ है 500 साल तक, ये जो लड़ाई हुई है 500 साल तक, इसके पीछे आपको लगता है कि हमारे धर्म की या सिविलाइजेशन की, भारत की क्या ये श्रेष्ठता रही है जो हम ये कर पाए हैं? जय श्री राम. एक बार जोर से बोलिए, जय श्री राम. जय जय श्री राम. जय जय श्री राम. यह हमारे अंदर की ऊर्जा है प्रभु श्री राम के नाम का. रग रग में वास करने वाले प्रभु श्री राम. एक नए युग की शुरुआत, एक नए युग की शुरुआत 22 जनवरी 2024 से हमारे अयोध्या भूमि में रहने वाले बहुत सारे साधु संत आज भी यह गाथा गाते हैं कि कैसे दर्दनाक तरीके से यहां पर मुगलों ने, तुगलकों ने कैसे मार काट मचाया था और 4 लाख से ज्यादा लोग, हमारे 495 वर्षों के संघर्ष के बाद 4 लाख से ज्यादा लोगों ने जान दिए थे और इसके बाद हमें विजय की प्राप्ति हुई. लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है कि आजादी प्राप्त करने के बाद भी 2 पक्ष बन गया, एक प्रभु श्री राम को मानने वाले और एक प्रभु श्री राम को नहीं मानने वाले. जो नहीं मानने वाले हैं वह सो कॉल्ड इस देश के सेकुलर जनता कहलाते हैं, सो कॉल्ड सेकुलर नेता कहलाते हैं. और उन सेकुलर नेताओं के लोगों के गलत तरीके से कन्विंस करने के कारण आज आपने देखा कि कैसे हमारे देश के धर्माचार्य शंकराचार्य भी विपक्ष में खड़े हो गए हैं.
मैं तो मानता हूं कि इस देश में अगर कोई भी संत, अगर संत हैं तो प्रभु श्री राम के प्रिय हैं और प्रभु श्री राम के भक्त हैं। अगर वह भगवान के भक्त हैं तो जो हम संघर्ष की गाथा लिखने जा रहे हैं, संघर्ष के बाद विजय प्राप्ति किए जा रहे हैं, उस विजय में उनको सहभागी होना चाहिए था। आज जिस प्रकार हमने श्री राम जी के जन्मभूमि पर एक विशाल राम मंदिर का निर्माण हुआ और 22 तारीख का प्राण प्रतिष्ठा है और उससे पहले जो रिचुअल शुरू हुआ है, निश्चित तौर पर यह हमारे सनातन धर्म की एक विजय है। इसलिए कहा गया है वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंद सामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति स्वान्तस्तमीश्वरम वंदे बोधमयम नित्यम गुरुशंकर रूपिणम यमाश्रितो हि बक्रोऽपि चंद्र सर्वत वंदेत मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। या भूमि रघुकुल रीत सदा चली जाई प्राण जाए पर वचन न जाई। प्रभु श्री राम का जो वचन था उस वचन को उन्होंने पूरा किया था। ठीक उसी प्रकार मैं यह मानता हूं कि देश की राजनीतिक पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी ने 3 वचन दिए, अयोध्या मथुरा और काशी, हमने अयोध्या पर विजय प्राप्त कर लिया। मथुरा और काशी की बारी है, लेकिन वहां भी इतने सुनहरे तरीके से काशी का कॉरिडोर बन गया है, मथुरा और वृंदावन की कॉरिडोर बनने के लिए शुरुआत हो रहा है। या निश्चित तौर पर स्वर्णिम युग है या सनातन का स्वर्णिम युग है। मैं इसका श्रेय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को और राष्ट्रीय स्वयंसेवक को, विश्व हिंदू परिषद को और बजरंग दल के साथ साथ जितने भी सनातनी संगठन हैं उन सबको, और साथ साथ हमारे 20 लाख नागा साधु संतों का, जिन्होंने इस राम मंदिर के निर्माण में और निर्माण से पहले तत्पर रहे। नागा साधुओं ने अपनी जान की बाजी की लड़ाई लगाई। कितने नागा साधु लोग अपने प्राण की आहुति दिए। लाखों लोगों की आहुति में जनता के साथ साथ मंदिर के ब्राह्मण, साधु संत, नागा सन्यासी और बहुत सारे अखाड़ा के भी संत लोग मारे गए। या निश्चित तौर पर हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज हम राम मंदिर के निर्माण में सहयोगी हैं और आज हम यहाँ रह करके निश्चित तौर पर इस पुण्य भूमि के, इस पवित्र भूमि के, इस स्वर्णिम युग का साक्षात साक्षी बने हुए हैं। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे जितने भी लोग हैं शंखनाद करते हुए उनकी बात को पूर्ण करूंगा। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है सबके लिए, जो उनका सौभाग्य है कि ये जो एक मोमेंट है, क्षण है हिस्ट्री में, वो देखने को मिला है। महंत गिरी हमारे साथ भी हैं। उनसे पहले मैं आपसे सवाल करूंगी कि अखाड़ों ने क्या लड़ाई लड़ी है 500 साल के लिए, बट आचार्य तिवारी जी शंखनाद करना चाहिए। यह शंखनाद विजय की शंखनाद है, सनातन का स्वर्णिम शंखनाद है। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। सियावर रामचंद्र जी की, सियावर रामचंद्र जी की, लगले लखन लाल की, पवन सुत हनुमान की, सीता मैया की, कौशल्या मैया की। महंत गिरी से मैं सवाल पूछना चाहती हूँ, वो जूना अखाड़े से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महंत जी, जब आपने सोचा था कि राम मंदिर बनेगा तो कितना भव्य होगा, क्या राम मंदिर उतना ही भव्य है? अब तो रामलला की मूर्ति के दर्शन भी हो गए हैं, पिक्चर आ गई है बाहर, क्या बिल्कुल उतना ही वैसा ही है सब भव्य जैसा आपने सोचा था? देखिए, विशेष रूप से जो आनंद का अनुभूति पूरा समस्त विश्व के सनातनियों को है,
अखाड़ों का जो आप देखिए कि हमारा 1 जनवरी से जूना अखाड़ा का जो मठिया है यहाँ पर जो तुलसी घाट पर नागेश्वर रोड पर जो है वहाँ हमारे महात्मा जो 400 महात्मा भी रह रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं। 500 सालों से हमारे नागा लोग श्रीपंच दशनाम जूना अखाड़े के नागाओं का बलिदान बहुत बड़े यहाँ पर हुआ है। और जो हमारे ये जो है विशेष रूप से निर्मोही अखाड़े के 1885 में जो है रघुवीर दास जी महाराज अंग्रेजों के समय में जो उन्होंने केस दायर किया था राम जन्मभूमि में, और उसके बाद में जैसे हमारे दिग्विजय नाथ जी महाराज है और हमारे जो अभिराम दास जी महाराज है, ऐसे ही बहुत संतों ने जो है जब 1949 में भगवान प्रकट हुए थे, रामलला जो है एक तरह से उनका मूर्ति का जो है वहाँ पर जो है दिव्य रूप में, तो ये जो है मान लीजिए कि आपका 1528 साल के आसपास में इसका संग्रह करीब जो है 2828 जो 1528 से जो है बाबर वगैरह ने, और 485-86 साल तक इसका निरंतर संग्रह चलता रहा। हमारे बहुत से पूर्वजों ने इसका बलिदान दिया है। इतना आनंद का अनुभूति ये जो है विशेष करके राम रसेन तुमरे पासा सदारो रघुपति के दासा, भगवान राम तो जो व्यापक है, और भारत का जो है हमारा जो गांव है वो बोलते हैं कि भारत गांव का देश है, और गांव के आज भी गांव के अंदर में अभिवादन करते तो राम राम बोलते हैं। तो जन्म से लेकर मृत्यु तक जब व्यक्ति मरता है तो राम नाम सत्य बोला जाता है। तो ये हमारे बहुत करोड़ों करोड़ों लोगों का बलिदान है, और ये निश्चित रूप से आज जो हम अयोध्या का रूप देखते हैं, स्वरूप देखते हैं, हमें पूरा मेरे को नहीं पूरा विश्व के समस्त सनातनियों को और समस्त जो सनातनी है उनको अति प्रसन्नता है कि अयोध्या के अंदर में इतना भव्य और दिव्य मंदिर स्थापना हो चुका है, और वहां पर जो है रामलला विराजमान हो रहे हैं। मान लीजिए कुछ लोग जो है हमारे गुरु मूर्ति लोग कुछ प्रतिक्रिया कर रहे हैं, तो उनका भी करना स्वाभाविक है, कोई खास बात नहीं है। देखिए कि जब हमारा सोमनाथ मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ था 1951 के अंदर में, जब उनका पूरा गर्भगृह वगैरह बन गया था, पूरा मंदिर तैयार नहीं हुआ था, और उसके बाद में 1965 के अंदर में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो ब्रह्मलीन हुए, उन्होंने मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा पूजा किया 15-14 साल के बाद में। तो ऐसा कोई बात नहीं है, हमारे यहाँ पर सभी प्रकार का विधान है। प्राण प्रतिष्ठा में पूरे समस्त हिंदू समाज को सबको बहुत आनंद है। मान लीजिए कि घर में 4 पुत्र होते हैं, चारों जो है सहमत नहीं होते, कोई सहमत हो चाहे न हो, परंतु सबको आनंद की अनुभूति होती है। तो ये सब लोगों को बहुत आनंद आ रहा है जी। तो आप मानते हैं कि कोई भी विवाद नहीं होना चाहिए, किसी भी विवाद की जरूरत नहीं है, पर आप तो देखिए कि विवाद तो होना बहुत जरूरी है, जहाँ पर विपक्ष हो, और विपक्ष भी होना स्वास्थ्य लोकतंत्र की निशानी है, और हमारा प्रतिक्रिया करने के लिए भारत लोकतंत्र का देश है, सब लोग स्वतंत्र है, अपनी बात कहना चाहिए। परंतु जो है जो मंदिर का स्थापना होने जा रहा है, भगवान वहां पर राम विराजमान होने जा रहा है, तो ये सभी लोगों के लिए बहुत आनंद और खुशी की बात है, और हमारे सभी संत समाज को बहुत उसमें आनंद और मंगल की बात है जी। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ 2 बातें जल्दी जल्दी। एक तो 500 साल की ये स्ट्रगल रही है, 500 साल का इतिहास रहा है, तो उस लड़ाई को आप कैसे देखते हैं? वो जो संघर्ष हुआ है उस संघर्ष को आप कैसे देखते हैं, और आज अखाड़ों में स्पेशली किस तरह की फीलिंग है कि वो संघर्ष उन्होंने भी बहुत सालों तक निभाया है? देखिए अभी सारे समस्त अखाड़े जो है पूरे भारत के जो अपने विशेष रूप से हमारे 13 अखाड़े हैं, सभी अखाड़े यहाँ पर जो है आए हुए हैं, और सबको आनंद की बात है। और पूरे भारत में जितने भी हमारे अखाड़े के संत हैं, करीब मान लीजिए कि 7000 महात्माओं को पूरा निमंत्रण मिला है राम भूमि ट्रस्ट के जो है तरफ से, और अभी वर्तमान में राम भूमि जो तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट है उसके अध्यक्ष भी नित्य गोपाल दास जी है, वो भी एक साधु है, और सभी संतों को निमंत्रण मिला है। तो निश्चित रूप से ये जो है कोई सरकार या कोई राज्य सरकार इसको जो प्राण प्रतिष्ठा करने नहीं जा रही है, ये विद्वान ब्राह्मण लोग प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, और सब साधु संत लोग मिलकर कर रहे हैं। इसमें जो है जहाँ भी कोई व्यवस्था होती है, जो लोकतंत्र के अंदर में मान लीजिए कोई सरकार है, चाहे कोई मेला हो, कुछ भी हो, प्रबंध करना, व्यवस्था करना सरकार का काम है, तो प्रबंध और व्यवस्था कर रही है। कोई सरकार जो मंदिर स्थापना करने नहीं जा रही है, तो सरकार का विरोध करना कि इसका कोई मतलब नहीं है। समस्त हमारे भारत के सभी साधु संत, सभी अखाड़े यहाँ पर अयोध्या में विद्यमान है जी। नहीं, अब ये भी बताइए, मैं सबसे ये भी पूछना चाहती हूँ, बट आप तो अयोध्या में रहे हैं, तो आपसे पूछना चाहती हूँ, हम कह रहे हैं सरकार का काम है व्यवस्था करने का, तो अयोध्या में जो अब कार्य हो रहा है, जो अयोध्या की डेवलपमेंट के लिए काम हो रहा है, उसको आप कैसे देखते हैं? अयोध्या कितनी बदली है आपके हिसाब से? देखिए जहाँ पर करोड़ों लोग आएंगे, पूरा विश्व का मान तो तीर्थ बनने जा रहा है, तो उसका जो विकास करना ये सरकार का परम कर्तव्य है।
वो अपना सरकार कर रही है। और मान लीजिए कि जो अपना मंदिर जो है विकास ट्रस्ट जो है रामतीर्थ जो है उसका पूरा संपूर्ण देश से सब हिंदुओं ने जो अरबों खरबों रुपये दान दिया है उससे पूरा मंदिर का निर्माण हो रहा है। और विशेष रूप से जो हमारा केंद्र सरकार है उसने भी करोड़ों रुपए दिया है विकास करने के लिए कि जनता का जो है चुना हुआ सरकार है, पब्लिक का है, तो पब्लिक के लिए प्रबंध करना, व्यवस्था करना वो सरकार का काम है। और वो सरकार बहुत बेखूबी से अभी देखिए अयोध्या की पूरा कायाकल्प हो गया है, वो एक दिव्य और भव्य अयोध्या बनकर तैयार हो गया जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, हम उम्मीद करेंगे यही कि आगे भी ऐसा ही चलता रहे। रामदास शास्त्री, आपसे मैं पूछना चाहती हूँ कि अभी तो रामलला के दर्शन भी हो गए हैं, हमारी स्क्रीन पे चल रही है, तो हम बहुत ही बड़े दिन ये शो कर रहे हैं बिल्कुल राम की पैड़ी पे, क्योंकि इस दिन प्राण प्रतिष्ठान से पहले ही जो रामलला की नई मूर्ति है उसके दर्शन हो गए हैं। आप क्या मानते हैं कि अब आगे ये जो मोमेंट हमारे हिस्ट्री में आया है इसका इम्पैक्ट क्या होगा? मैं पहले तो सुंदर भगवान के दर्शन कर रहा हूँ आपके स्क्रीन में, कितने सुंदर लग रहे हैं। तो ये बहुत ही हम सब अपने भाग्य की कल्पना नहीं कर सकते। जो 496 वर्ष के जो लोगों को जो भाग्य नहीं मिला, हम सबका भाग्य है कि हम सब देख पा रहे हैं राम मंदिर को होता हुआ। भगवान राम अब जस्ट 2-3 दिन में विराजमान भी हो जाएंगे। ये पूरे विश्व में एक्चुअली कहा गया है हमारे शास्त्रों में कि कलयुग का जो पहला 10,000 वर्ष है उसमें सनातन धर्म का जो पताका है पूरे विश्व में फहराएगा। और ये राम लल्ला की जो विग्रह जो स्थापित होने जा रहा है वो उसी का सूचक है। अच्छा, अभी जो सनातन धर्म है आप देखेंगे, जैसे इस्कॉन हम लोग पूरे विश्व में प्रचार करते हैं, पूरे हमारे विश्व में 180 देशों में हमारे मंदिर हैं, भक्त हैं। और जैसे मैं खुद जब मैं मॉस्को रशिया में गया था जब 17 साल का था, तो वहां पर 1993 में मैं जन्माष्टमी अटेंड करने गया एक स्टेडियम में। और जब मैं स्टेडियम में घुसा तो वहां पर 1 लाख रशियन लोग धोती कुर्ता पहनकर हाथ उठाकर बोल रहे हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये मैं 30 वर्ष पहले की बात बता रहा हूं। हमारे इस्कॉन के 150 मंदिर हैं। रामलला के मंदिर यहाँ पर भारत में हो जाने के बाद में अयोध्या में पूरे विश्व में एक नया संचार आएगा। जो सो रहे हैं, जो हमारे हिंदू भाई भी जो सो रहे हैं वो भी उठेंगे और अपने धर्म सनातन धर्म के प्रति जागरूक होंगे, अपने शास्त्रों को पढ़ेंगे और पूरा भारत सनातन हो जाएगा। चलिए, आप क्या मानते हो, क्या इम्पैक्ट होगा इसका? इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। दिस इज द अवेकनिंग ऑफ द कल्चरल वैल्यूज ऑफ इंडिया। राम इज नॉट जस्ट रिलेटेड टू रिलीजन, राम इज द एपिटोम of kingdom also. He is the epitome of the perfection in a kingdom. There was no theft, no robbery, no pakshapat. The Ram Rajya Kalpana, what we have gone through in Ayodhya, the most important thing is to see the character of Lord Rama as a whole. He is known to be a Maryada Purushottam, the man of supreme honor, the man of perfection, the man who follows, who delivered his duties to the perfection as a son, as a husband, as a ruler, as a countryman. The way he is taken the jhoote bear of Shabri. People says I want to discuss a little bit of astrology over here. This is the Mahurata of Abhijit Mahurata when the Pran Pratishtha will go on. And at that time, Aries sign will be rising in the eastern horizon with the Jupiter, which is transiting in the sign of Aries. And Lord Rama Kundali also has Jupiter in the Lagna with moon. And Jupiter is exalted in his host sign. And that point of time, Saturn is also exalted, Mars is also exalted, and Venus is also exalted. And somewhere at the time when the Pran Pratishtha is going on, Moon is also exalted in the chart of that Lagna. Also, the Saturn is going through its own sign of Aquarius. And the Panchang of that day is Shukal Paksha. Shukal Paksha is the very positive, auspicious phase when the moon is waning. And then this is the Uttarayana sun. The sun is in the northern hemisphere, which is also very auspicious. Then the Vastu of the temple.
The temple is made on the ancient Nagar Shaili, in which the platform is risen and leveled, and then the Dwar, the entry Dwar, is the Singh Dwar. Singh is again the sign of kingdom. Singh is the king of the jungle, and the sun is also rising on the 10th house, which is where the sun is always exalted and have that Disha Bal we said in astrology. So see, this is the permutation combination of planetary combination which we are going through. Somewhere, if I see the horoscope of Pradhan Mantri Modi ji also, all the planets are making such a great combination that we all are going through this divine awakening of India. Absolutely. And then this is the also... Prime Minister has already said that, this is of course a divine moment for him and for everybody else to be a part of this ceremony. I have some young kids with me. They are from Ayodhya. ये अयोध्या से ही हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो मैं आपसे अब उम्मीद करूंगी कि अब रामलला की मूर्ति के दर्शन हो गए हैं, रामलला के लिए कुछ भजन गा दीजिए। अयोध्या में आनंद छाया, राम मंदिर का उत्सव आया। अयोध्या में आनंद छाया, राम मंदिर का उत्सव आया। सबके दिल में खुशी और मगन सभी, सबके दिल में खुशी और मगन सभी, सबका मन है हर्षाया, राम उत्सव है आज आया। अयोध्या में आनंद छाया, राम का है आज उत्सव आया। कुर्बानी धनी ये फिर बात बने, कुर्बानी धनी तब ये बात बनी। कार सेवकों ने बीड़ा उठाया, कार सेवकों ने बीड़ा उठाया, राम का फिर उत्सव आया। अयोध्या में आनंद छाया, राम मंदिर का उत्सव आया। And with that, I want to take your leave, but of course, we are not going anywhere as far as Ayodhya coverage is concerned. We'll continue to get you more of this. I do thank all of our guests for joining us on the stage today, and we'll get you more of these conversations as we draw closer to January 22.